A very good morning, everyone. This is Hitesh Angir from Spider Software, and today we are here for the part 3, which we are discussing about reversal technique to find out intraday stocks. So, today I'll discuss on the candle formation because majorly we know that there are different type of chart patterns are there. Okay, we know there are different types of candlestick patterns are there, but the pure reversal that we going to discuss today with the help of scanners, and what are the other factors that you can see at the time of candle formations and their sentiment, because overall what I understood that every stock has its own sentiment as per the formation, so we need to understand that. So for that I'm going to discuss about some technical query conditions, and on that basis we will filter out the stocks, and I'll guide you that how you can take your SLN targets with that. Okay, so this is the part 3. This is the final part today. Okay, so you can watch the all 3 on YouTube maybe by tomorrow. Okay, the rest 2 parts are already uploaded. So this is a part 3. So as I discussed, we are majorly focusing on the price actions. Okay, so we'll start today right now from here. So it's a candle formation. So basically everyone know whenever there's a reversal, we'll get a U shape at the top. So overall it's a 3 candle formation. Okay, so how it works, like might you have seen these formations. Okay, so you will get a green candle or maybe any candle, and then you get a small doji type of candle, and then you will get a reversal. So this kind of formation you might saw with you can say in a candlestick pattern where you can see the morning star formations and the evening stars are there. Okay, it's little kind of the same one, but there are some twists which I added, and as per that I'm going to discuss the reversal pattern. So here, first of all, as I discuss always, I always use the boring candle setting on my chart. Okay, so you can right click on the chart and you can go to settings and you can enable the boring candle setting. Okay, which is in the chart display, and you can select this one and you can set this one. Okay, this is required because I wanted the reversal candle should be the boring candle. क्योंकि अगर बिना रिवर्सल कैंडल अगर बोरिंग कैंडल नहीं होगा तो आपको डिस्कस जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ कहाँ से सप्लाई प्रेशर आएगा और कहाँ से बाइंग प्रेशर आएगा, that candle defines. Okay, so overall this is the formation which you already seen in different candlestick pattern, but yes, we are using the same one, but the execution will be the different one. तो आपको ये जो formation मिला, you can see here, this is a formation in the trend. Okay, this is in 5-minute charts, this is yesterday's charts. So here you can see it's a dark green candle, then you got a reversal pattern of a doji kind, and then we got a confirmation candle. So overall this is 3 candle patterns where you use the filtrations for your reversal stocks, and according to that we're going to see the reversal. Okay, what are the next rules which I follow? First is whenever you go for the bullish pattern, so always you need to finding out there should be a reversal plus your previous candle. Okay, जो भी previous candle का high है उसके ऊपर आपका current candle close होना चाहिए. Okay, so which means your current candle close should be higher than the previous candle high. अब इससे क्या होगा कि जो ट्रेंड है उसके अंदर कंफर्मेशन मिलेगा. अगर उसके प्रीवियस कैंडल के ऊपर भी अगर क्लोजिंग दे रहा है तो वो और हमारे लिए बेनिफिटेड है, बिकॉज वो ओवरऑल सेंटिमेंट शो कर रहा है. बट व्हेन यू सी देयर इज अ यू शेप रिवर्सल and your current candle should be close over previous candle, and at the same time that candle should be a day high or a day low. Okay, so in this case when you are discussing about bullish, because हमें पता है कि अगर हमें तेजी करनी है, so at that point of time your bullish formation should be a day low. तो ये जब चीज हमें देखने मिलेगी तब हमें एडवांटेज मिलेगा, हम एकदम बॉटम के आसपास कहीं बाइंग कर रहे हैं जहां पे हमारा रिस्क काफी छोटा होगा, एंड उसके बेसिस पे हम अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूशन कर सकते हैं. तो इसके लिए यू हैव टू गो टू द स्कैनर्स. ओके, सो फॉर दैट व्हाट यू कैन सी हियर, यू कैन गो टू द फाइल, एंड जैसे हम डिस्कस करते हैं हमेशा कि जब कभी हम फाइल्स में जो भी हमारी क्वेरीज होती है, सो वहां पे आप फाइल में जाके आप डाउनलोड फाइल्स में आप लोड कर सकते हैं, जैसे हम हमेशा वेबिनार में अपलोड करते हैं. तो यहाँ पे जो स्कैनर है वो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, और उसके कंडीशंस मैं आपको शो कर देता हूँ पहले. ओके, सो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ टेक्निकल क्वेरी, एंड टेक्निकल क्वेरी में मैंने एक विंडो ओपन किया. इस विंडो में मैंने खाली एक लोड किया, बिकॉज जैसे हम
वो फाइल डाउनलोड कर लोगे, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डाला पार्ट 3 रिवर्सल। ओके, पार्ट 2 का भी यहाँ पर है, पार्ट 1 भी यहीं पे। ओके, सो पार्ट 3 रिवर्सल व्हेन यू क्लिक, इसको जब आप ओपन करोगे, ओके, यू विल गेट सम कंडीशंस। ठीक है, अब सबसे पहले चीज यू कैन एबल टू सी हियर इज लोएस्ट लो फॉर टुडे एंड हाईएस्ट हाई फॉर टुडे। ये दो कुछ कंडीशंस है जो हमने रिसेंट अपडेट में हमने ऐड किए। okay, because I just wanted to finding out a stock which is at day high or day low at that point of time on intraday basis, because we already have a condition which is close equals to high or close equals to low in price volatility, but I wanted specifically that a particular time frame candle should be at day high or day low. So उसके basis में हमने ये conditions create की है। okay, so for that you can go to the conditions and यहाँ पे there is an option of a price OHLC for intraday query only। ओके, सो व्हेन यू टिक ऑन दिस, यहाँ पे आपको पैरामीटर्स मिल जाएंगे जो भी टाइम फ्रेम आपको चाहिए। स्पेसिफिकली हमने बनाया है इंट्राडे के लिए, सो यू कैन यूज ऑन एनी इंट्राडे टाइम फ्रेम। देन यू कैन गो टू द कंडीशन एंड हियर एट द लास्ट, एकदम लास्ट में आपको मिल जाएगा हाईएस्ट हाई फॉर टुडे एंड लोएस्ट लो फॉर टुडे। मतलब उस वक्त वो जो कैंडल है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होगी या हाईएस्ट पॉइंट पे होगी। ओके, एंड वो हमेशा प्रीवियस कैंडल के साथ कंपैरिजन होता है। ओके, सो इफ आई चूज लोएस्ट लो, मतलब वो उस टाइम पे लोएस्ट लो है, तो इधर देखो मैंने nth पे एक बार 1 डाल दिया ताकि मुझे नेक्स्ट कैंडल कंफर्म जो चाहिए वो मुझे मिल जाए। ओके, सो इन दिस केस इफ आई पुट अ हाईएस्ट हाई, सो ये होगा। एंड लोएस्ट लो की बात करेंगे तो अब जैसे अगर हम कोई भी अगर स्टॉक्स लें, जैसे लेट्स अज्यूम कि अगर मैं यहाँ से अगर मैं कोई भी स्टॉक्स लेने जाऊंगा तो जब तक वो लोएस्ट लो क्रिएट नहीं करेगा तब तक वो हमें शो नहीं करेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेशन देखूं, ये यहाँ से फॉल हुआ है LTIM में, सो दिस विल बी माई लोएस्ट लो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, उसके बाद अगर उसने वापस कहीं पे लो क्रिएट किया तो वो लो आ जाएगा। सो दिस लोएस्ट लो कंडीशन विल बी लाइक योर इंट्राडे कैंडल शुड बी एट डे लो। ओके, उसके बाद मैंने एक कंडीशन यूज की है क्लोज विच इज क्लोज अपवर्ड ब्रेकआउट 2। ओके, आई थिंक मेरे प्राइस ओरिजिनल की कंडीशन में मैंने एक्सप्लेन किया कि वो है क्या। सो इन शॉर्ट, मतलब योर करंट कैंडल इज हायर देन द प्रीवियस कैंडल हाई। ओके, और वहां पे क्लोजिंग मिल चुका है उसको। ओके, सो ये फॉर्मेशन जो है, जो हम यू शेप जो हम देख रहे हैं, ये पूरा फॉर्मेशन आपको वहां पे मिलेगा। और मैंने ये डिफाइन किया कि जो हमारा करंट कैंडल होगा दैट शुड बी मोर देन 50% बॉडी, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड बुलिश कैंडल एंड योर प्रीवियस कैंडल शुड बी अ बोरिंग कैंडल। सो ये फॉर्मेशन होगा बट एट डे लो होगा। ओके, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि यस, डे लो पे वैसे काफी फॉर्मेशन होते हैं एंड वहां से स्टॉक नहीं चलते। ओके, सो उसके रीजंस भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं चल रहे और कौन सी चीज आपको लेनी है। बट यस, हमने ये स्कैनर्स ऑलरेडी क्रिएट करके रख चुका है, आपको आई थिंक वो डाउनलोड्स में कहीं पे मिल जाएगा। ओके, तो डाउनलोड्स में आप उसको चेक कर सकते हो। डाउनलोड्स में आपको मिसलेनियस में एक वेबिनार का जो फाइल है वहां पे आपको मिल जाएगा वो। ओके, तो जैसे मैं अभी अभी इसको मैं जब रन करूंगा तो स्पेसिफिकली इसका जो रनिंग टाइमिंग होगा वो आपको जो डे की जो थर्ड कैंडल है उसके बाद से ही आपको देखने मिलेगा। आपके फर्स्ट 2 कैंडल पे वो रन नहीं होने वाला है, बिकॉज जैसे मैंने कहा इट रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 कैंडल्स। ओके, तो 2 कैंडल मीन्स आपके 2 कैंडल है, विच मीन्स आपका अगर आप इसको लाइव क्वेरी में रन भी करोगे इट विल स्टार्ट फ्रॉम 9:30। ओके, सो हमारा जो पार्ट 1 था विच इज स्पेसिफिकली ऑन 9:20, जो सेकंड पार्ट था वो हमने शुरू किया था 9:25 और ये वाला जो है वो 9:30 से ही शुरू होगा। ओके, तो सारे सीक्वेंस रहेंगे आपके लिए। अब जो जो पार्ट 3 में जो है वो ये है कि एटलीस्ट 2 कैंडल होने चाहिए एंड उसके बेस पे वो रिवर्सल दिखाएगा। अब मैं आपको ऑफसेट के हिसाब से दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक बार के लिए जो हमारी बुलिश कंडीशन है उसी को मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ। ओके, सो ऑफसेट के हिसाब से द थर्ड कैंडल विल बी लाइक फ्रॉम हियर 9:30, सो माय ऑफसेट विल बी माय 72। अभी ये आपको लाइव मार्केट में नहीं करना है, जस्ट टू शो यू कि कौन से स्टॉक्स आए थे कल के दिन में, वो उसके लिए मैंने ये चीज किया है। ओके, सो इफ आई रन दिस, ओके, एक काम करता हूं, मैं इसको फटाक से FNO ले लेता हूँ। ओके, सो ये आप जब इसको रन करोगे ओके, अब आपको दिख रहा है कि ये तीन स्टॉक्स मुझे मिले विच इज एट 9:30। सो अगर आप देखोगे कैन बैंक, क्योंकि वो पर्टिकुलर पैटर्न पे यू कैन सी दिस कैंडल वाज अ डे लो और ये कैंडल आपका स्ट्रॉन्ग है एंड द वेरी नेक्स्ट कैंडल इज क्लोजिंग अबाउट दैट। ओके, ये आपको फॉर्मेशन आपको यहाँ पे स्कैनिंग में मिल गया। ओके, सो पहले मैं आपको फॉर्मेशन दिखा देता हूँ कि ये फॉर्मेशन रहेंगे। हाँ, जो इसका प्रीवियस कैंडल है इट कैन बी स्ट्रॉन्ग कैंडल, इट कैन बी वीक कैंडल, हमें उससे मैटर नहीं है।
जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो उतना हमारे लिए अच्छा होगा. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ यू शेप रिवर्सल. ओके, अब ये हमारा हो गया बुलिश पैटर्न. सेम वे अब हम जाएंगे बेरिश पैटर्न. क्या होगा? जो इसका ऑपोजिट होगा, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, अगर वो होगा तो ज्यादा अच्छा है. अदरवाइज द वेरी नेक्स्ट कैंडल इज डोजी कैंडल, okay, which is a boring candle, and the third one is closing below that. Okay, actually यहाँ पे जो फॉर्मेशन है, ये अगर आप देखोगे ये एक्चुअली रॉन्ग फॉर्मेशन है. इसके ये रेड कैंडल होना चाहिए और ये ग्रीन कैंडल होना चाहिए. तो इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. जैसे हम इसको अगर यहाँ पे बेरिश मोड में लेके आएंगे, इसको मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, तो देखो मुझे यहाँ पर ये पर्टिकुलर टाइम पे कोई नहीं मिला. देन आई एम यूजिंग 71, बिकॉज इसी बेसिस पे आपको यहाँ पे कोई ना कोई स्टॉक्स रिवर्सल में मिल जाएगा. आप देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करूं, so you can see that this is a day high candle and then you are getting a reversal candle, जहां पे आप देख रहे हो कि उसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है. so this formation actually help you to finding out reversal. okay, इसी तरीके से आपको बालकृष्ण में मिल जाएगा. अगर आप थोड़ा सा जूम इन करोगे, आप देख रहे हो बालकृष्ण में ये टाइम पे इट्स अ डे हाई कैंडल. ओके, देन यू कैन सी यू गॉट अ रिवर्सल, क्लोजिंग मिला एंड वहां से फॉल हुआ. ओके, देन भारत फौज है, आइचर मोटर है, पॉलीगैप है. अब ये सारे फॉर्मेशंस है. But when you are in a live market, when you are getting a 5 stocks, to choose 1 or 2 is a skill. Okay, अब उस स्किल में हम क्या ऐड करेंगे? जैसे हमने अभी जो पास्ट के दो सेशंस ऐड किए, जो हमने नॉलेज जो गेन किया गैप्स का या प्रीवियस डे हाई लो का, हम उसी में से प्रीवियस डे हाई लो को कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पे. क्या कि आपको खाली ये देखना है, आपके जो फॉर्मेशन होंगे उसमें आपको ये चेक करना है, आइदर जो आपका जो ये जो कैंडल्स फॉर्मेशन हो रहा है, विच इज एट डे हाई और डे लो, विच इज रीटेस्टिंग योर प्रीवियस डे हाई लो और नॉट. ओके, जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूं, बजाज फाइनेंस में यू कैन सी दिस इज अ रिवर्सल कैंडल. ओके, बट अगर आप चेक करोगे ये जो हाई है विच इज टू लॉन्ग फ्रॉम हियर. ओके, यहाँ से काफी दूर है, टू फार फ्रॉम हियर, और बिकॉज सेलिंग है तो उसका प्रीवियस डे हाई टच ही होना चाहिए, बिकॉज ऊपर से वो गिरेगा. ओके, एंड फॉर बुलिश वो हमेशा प्रीवियस डे लो के पास टच होना चाहिए या उसको क्रॉस करता हुआ मिलना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर नहीं होगा, वो इसके ऊपर भी हो सकता है, बट इट टेस्टेड एंड क्रॉस्ड प्रीवियस डे हाई फ्रॉम अबव. अब ये कैसा होगा? मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मैंने देखा है वो एक भारत फौज है. ओके, आपको दिखा रहा हूँ. अभी यहाँ पर आप चेक करोगे, दिस इज अ रिवर्सल. ओके, यहाँ पे अगर देखोगे ये रिवर्सल है फ्रॉम टॉप. अब इस टॉप के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दे चुका है. ओके, अब हमें नहीं पता कि शायद वहां से वो गिरेगा या नहीं गिरेगा, बट एट द सेम टाइम यू कैन सी दिस कैंडल इज नॉट एबल टू सस्टेन प्रीवियस डे हाई. तो ये जो फॉर्मेशन है ये एक्चुअली आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ कि मैं इसके नीचे मैं मंदी कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पे एक अच्छा फॉर्मेशन हो सकता है. सो इन दैट केस व्हाट यू कैन सी कि आपका जो कैंडल है वो आइदर इस लेवल को टेस्ट कर रहा होगा या इस लेवल को नीचे क्रॉस कर रहा होगा. इन दैट केस ओनली यू कैन गो फॉर द शॉर्ट. और इसी केस में आप स्टॉप लॉस का लगा सकते हो. जनरली आप अगर इस कैंडल का जो हाई अगर आप वही स्टॉप लॉस लगाओ तो दैट विल बी बेस्ट फॉर यू, बिकॉज उसके बेस पे आपको एक अच्छा फॉल देखने मिलेगा मेजरली. ओके, उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर आप आइचर मोटर की बात करो, आइचर मोटर में भी देखो यहाँ पर एक ऑप्शन हमें मिला था. ओके, आप देखोगे यहाँ पर कि इसने यहाँ पे फॉर्मेशन किया, बट यू कैन सी द वेरी नेक्स्ट कैंडल इज नॉट फॉलोइंग दैट कैंडल. ओके, जैसे हमें पता है अगर कोई स्टॉक फॉलो होना चाहिए तो विद इन 2 कैंडल्स, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि विद इन 2 कैंडल्स में वो ब्रेक होना ही चाहिए. अगर वो नहीं हो रहा है मतलब उसमें मोमेंटम नहीं है, बिकॉज 1 कैंडल कैन बी इनसाइड बार बट नॉट 2, क्योंकि 2 अगर हो गए तो चांसेस कम है. सो सेम वे आप देखो भारत फौज में, यहाँ पर आप देखो जैसे वो क्रॉस किया उसने वहां से फ्रॉम 1063. ओके, वहां से उसने कोशिश की एक नया लो बना के विच क्रिएटेड अ 1055. ओके, ये तो एक फॉर्मेशन हो गया. तो यहाँ पे एट द एंड आपका जो लॉस नहीं होगा, या अगर आप ऑप्शन बायर हो, जैसे यहाँ पे चांसेस हो सकता है अगर स्टॉक साइडवेज गया, बट उसी केस में अगर कोई ऑप्शन राइटर है ही कैन सेल अ कॉल, बिकॉज आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे फॉल हो सकता है. तो राइटर्स को पैसे मिलेंगे यस, लेकिन अगर बायर है तो शायद कॉस्ट टू कॉस्ट ही होगा. ओके, सो आप इस टाइप के फॉर्मेशन देख सकते हो, लेकिन बालकृष्ण में व्हेन यू सी इट्स नॉट टचिंग दिस हाई. ओके, सो ये मेरे क्राइटेरिया में नहीं है. ओके, अंडरस्टूड. अब सेम चीज मैं आपको एक बाइंग केस का मैं दिखा देता हूँ कि बाइंग के लिए अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ, सो आई थिंक हमने जहाँ पे देखा था 67, और इसको मैं रन कर देता हूँ बाइंग के लिए. तो कोई ना कोई ऐसा स्टॉक रहेगा जो प्रीवियस डे लो को टेस्ट करेगा. अगर यहाँ पे नहीं आ रहा, बिकॉज एनीवे हमें क्या देखना है कि कहाँ पर वो स्टॉक टेस्ट कर रहा है. ओके, बट वो प्रीवियस डे
लो के आसपास ही उस टेस्ट करना चाहिए, बिकॉज वही उसको एक एडवांटेज देगा, वही उसको वहां से पुश देगा कि वहां से जा सकता है। तो अब देख रहे हो कि यहाँ पे कोई मेजरली बुलिश साइन नहीं दिखा यहाँ पर। अब मैं स्टार्टिंग पे वापस एक बार लेके आता हूँ कि उसके आसपास कोई मिल रहा है। ओके, सो लेट्स अज्यूम कि अगर मानापुरम है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे उसने टच नहीं किया है, तो जहां तक वो टच नहीं किया है तब तक आपको नहीं लेना है। ओके, सो ये फॉर्मेशन है। अब इस फॉर्मेशन के बेस पे अगर आप जब स्टॉक देखते हो तो आपको हमेशा उसी टाइप के हिसाब से आपको चूज करना चाहिए। ओके, तो जब आप चूज करते हो आपको ये देखना है कि अगर बुलिश है तो प्रीवियस डे लो टच कर रहा होगा, अगर बेरिश है तो प्रीवियस डे हाई, बिकॉज वो वहीं से रीटेस्ट करेगा। ओके, सो मैं यहाँ पे जो है मैं ग्रुप डाल के मैं एक्चुअली इसको एक बार चेक कर लेता हूँ कि यहाँ से कौन सा बेस्ट हमारे लिए हो सकता है, विच इज एक्चुअली टचिंग योर दिस लेवल। ओके, सो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर कहीं पे भी अगर कोई स्टॉक अगर टेस्ट करेगा, विच इज टेस्टिंग योर दिस जोन, ऐसा कुछ होना चाहिए कि ऐसा टच करके देन इट क्लोज अबाउट दैट। ओके, सो वो केस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे जो मैंने कल देखे थे। एक जो था कि जो अदानी, आपने देखा रहेगा कि कल अदानी जो है वो काफी अच्छा फॉलिंग के सिग्नल्स दे रहा था, तो आप उसको यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब वही जो स्कैनर है आप देखो यहाँ पर, दिस इज एट 940। ओके, अब ये 940 को सिग्नल है जहां पे हमें दिखा कि ये स्टॉक ने डे हाई मारा है एंड देन वेरी नेक्स्ट कैंडल क्लोज बिलो दिस। बट अगर आप देखो इसने इसको प्रीवियस डे हाई को टेस्ट किया है, ओके, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे ही है। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे टेस्ट करने के बाद ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से मंदी आ सकती है। ओके, सो बिलो दिस यू कैन शॉर्ट। ओके, आप यहाँ पे इस कैंडल का हाई आप मेंटेन कर सकते हो। ओके, द सेकंड सिनेरियो व्हाट यू कैन डू, कि जनरली मैं ये देखता हूँ कि अगर जो डोजी कैंडल होता है, ओके, आप उसका अगर 50% निकाल लो डोजी कैंडल का, आप अगर रिट्रेसमेंट में अगर आप 50% निकाल लोगे वहां पर, तो उसके आसपास भी आप एसएल मेंटेन कर सकते हो। सो इट टोटल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको एसएल, आपको अगर ज्यादा लग रहा है, जैसे भी ये केस में अगर मुझे लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है, सो आई कैन मैनेज कि मैं इसका 50% निकाल लूँ। ओके, एंड अगर आपको ये जो सेटिंग्स, अगर आपको टूल्स में कुछ अगर आपको ऐसा दिखे तो आप राइट साइड ले लो एंड देन यू कैन सेट। ओके, तो आप देख रहे हो कि ये केस में इफ आई वांट टू मिनिमाइज, तो मैं ये स्टॉप लॉस है मैं ये लाइन के आसपास विच इज नियर 820 मैं वहां पे भी मेंटेन कर सकता हूँ, एंड आई कैन शॉर्ट बिलो 815। तो मेरा रिस्क ₹5 का हो गया, एंड अकॉर्डिंगली आई कैन वेट फॉर 1%। ओके, अब यहाँ पे एट द एंड वो डे पे क्लोज हुआ तो कल के दिन वो गैप डाउन खुल लेंगे, चांसेस अच्छे हैं उसके। ओके, तो सेम वे आप यहाँ पे जब चेक करोगे आपको स्टॉक्स आपको देखने मिलेंगे। अब से अगर आपने देखा रहा है कल के दिन मिड कैप निफ्टी, जस्ट अ मोमेंट, मिड कैप ये निफ्टी जो था, ओके, यू कैन सी ये फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिला है, ये पर्टिकुलर केस पे ये यहाँ पे मिल सकता है, ये यहाँ पे मिल सकता है, बिकॉज व्हेनेवर देयर इज अ डे हाई। बट ये कैंडल में क्या हो गया व्हेन यू सी कि अब देखो ये कैंडल के नीचे इसको क्लोजिंग नहीं मिला है, द वेरी नेक्स्ट कैंडल, बट इन दिस केस यू कैन सी कि यहाँ पर उसको कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिला और साथ में प्रीवियस डे हाई के नीचे भी वो क्रॉस कर रहा है। सो हियर ये आपको एक पोटेंशियल मिलता है कि यहाँ से वो फॉल हो सकता है। ओके, तो आपका रिस्क कितना है, फ्रॉम 77 टू 94, हार्डली 15 पॉइंट का एसएल, 15 से 17 पॉइंट का एसएल है, लेकिन उसके सामने एटलीस्ट आपको जो है वो वहां पे उतना फॉल देखने मिल सकता है। अब देखो यहाँ से वो जो है मिड कैप निफ्टी, ये प्योरली मिड कैप निफ्टी का ये ट्रेड है जो कल के दिन में है। कल के दिन में सेम निफ्टी में भी आया था, बट द थिंग इज निफ्टी में इट वाज नॉट टचिंग द प्रीवियस डे हाई, बट मिड कैप निफ्टी में वो टच कर रहा था। सेम फॉर फिन निफ्टी अगर हम बात करें, ओके, लेकिन ये प्रीवियस डे हाई टच नहीं कर रहा था, दैट्स व्हाई वी आर इग्नोरिंग दिस ट्रेड। अगर वो सेलिंग हो रहा है तो वो हाई पे होना चाहिए ताकि मुझे बड़ा फॉल मिले। ओके, एंड अगर वो बुलिश का ट्रेड है तो वो लो से टच होकर ऊपर जाना चाहिए। ओके, सो इसी तरीके से आप यहाँ पे जो स्टॉक्स है, बिकॉज कल मार्केट जो था गैप अप था, एंड उसके वजह से फिर बाद में अगर आप देखोगे कि मेजरली हमें सेलिंग ट्रेड्स ही मिले यहाँ पे। अब क्यूमिंस ये एक फॉर्मेशन देखो यहाँ पर, सेम फॉर्मेशन यू कैन रन ऑन स्कैनर, आपको ये मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दिस कैंडल इज क्लोजिंग बिलो दिस, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आपको दिख रहा है कि उसने टच किया हुआ है, क्रॉस किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली एक फॉल मिला है जहाँ पे आपका रिस्क काफी छोटा था। और देखो आपको यहाँ पे विद अ रिस्क ऑफ ₹8 यू कैन एक्सपेक्ट 1%। ओके, सो हियर यू गॉट द 1%। ये हो गया भारत फौज। अब सेम चीज आपको आई थिंक आईएक्स में भी मैंने कहीं देखा था। ओके, सो आप देखो यहाँ पर ये जगह पर आपको मिल रहा है, बिकॉज
ये केस में यहाँ पर क्लोजिंग नहीं आया था। सो इन शॉर्ट जो हमारी जो न्यू कंडीशन है विच इज टचिंग हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो, वो हमें हेल्प कर रही है डे हाई डे लो के लिए, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फिल्टर आउट द स्टॉक्स। ओके, तो अगर आपको टेस्ट करना होगा तो आप इस तरीके से टेस्ट कर सकते हो, बट द थिंग इज आपको खाली एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपका जो स्टॉक्स जो भी स्टॉक्स है मतलब जो आप सर्च करो वो आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब अगर आपका ईओडी डाउनलोड हो गया है। अगर आपका ईओडी फाइल्स अगर डाउनलोड हो गए तो आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये जो स्कैनिंग होता है वो प्रीवियस डे के ईओडी के बेसिस पे होता है, एंड अगर आपका आज का ईओडी भी हो गया तो वहां से आपको चांस नहीं मिलेगा ओके देखने के लिए। सो आप जो है इसको जब भी आप देखो जब तक ईओडी डाउनलोड ना हो, लाइक अगर 6 o'clock से पहले अगर आपका ऑटो अपडेट है, अगर उसके पहले ना हो, सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो स्टॉक जो है तब तक आपको वो शो नहीं होगा। जैसा मतलब आपका बुलिश होगा वो इस टाइप का होगा फॉर्मेशन। ओके, ये आप देख रहे हो। अब दाल भारत अगर मैं यहाँ पर देखूं, कल के दिन में अगर हमने ये रन किया होता, ओके अगर आप कल के दिन में अगर आप ये रन कर रहे होते, तो आप देख रहे हो कि दाल भारत को यहाँ पे टच किया है। ओके, अगर इसने क्लोज किया है इसके ऊपर, सो इट विल शो यू। अगर नहीं गया है तो ये हमारे लिए क्या है कि हमारे ऑब्जर्वेशन है कि हाँ अगर ऐसा मिल जाए तो आपके लिए बेस्ट होगा। ओके, तो इसी वे में आप उसी को ट्रेड कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो। ओके, सो ये एक फॉर्मेशन है जो आप यूज कर सकते हो अपने इंट्राडे ट्रेड्स के लिए। तो जैसे मैंने स्पेसिफिकली बोला कि पार्ट 1 के लिए जो हमारे पास जो गैप्स है वो हमने यहाँ देखे थे। ओके, जहाँ पे हमने स्पेसिफिकली कुछ रूल्स देखे थे, और जहाँ पे मैं बेस्ट समझता हूँ अगर वो स्टॉक गैप अप हो लेकिन प्रीवियस डे हाई के ऊपर तो वो बेस्ट होगा। वो मेरे हिसाब से मुझे ज्यादा बेटर एक रिजल्ट दिखता है फॉर बुलिश। फॉर बेरिश मैंने ये डिस्कस किया था कि वहां पे हमने प्रीवियस डे लो के नीचे होना चाहिए एंड ग्रीन कैंडल होना चाहिए। ये सारे रूल्स है, ये मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया, उसी डाउनलोड्स के अंदर आपके स्पाइडर फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगा पार्ट 3 के नेम से। साथ में मैंने जो पार्ट 2 के जो कुछ रूल्स है वो भी मैंने वहां पे ऐड किया, ताकि एट द एंड अगर आप वहां पे चेक करोगे तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, सो ये जो फॉर्मेशन है इनके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे, श्योरली आप अभी के अभी आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, और जो क्वेरीज वगैरह है वो आपको जैसे मैंने कहा डाउनलोड्स में मिस्ट में आप क्लिक करो, आपको वहां पे दिख जाएगा आज के नेम के वेबिनार का फाइल, वो डाउनलोड कर लेना। और एक और डाउट था आई थिंक कुछ लोग को यस कि जब मैंने यहाँ पे पार्ट 2 जो बनाया था उसके अंदर एक एरर था। ओके, वो स्कैनिंग में एरर ये था कि मैंने एक्चुअली जब बुलिश एंड बेरिश जो लिखा था, ओके वो मैंने इंटरचेंज कर दिया था गलती से। ओके, सो मैंने जो नया जो स्कैनिंग होगा उसका तो मैंने पार्ट 2 के नाम से दिया हुआ है, तो आप डाउनलोड करके वो साथ में ही आ जाएगा, आप उसको रन कीजिए। बिकॉज खाली कंडीशन क्या हो गया कि जो डिस्क्रिप्शन है, ओके जो डिस्क्रिप्शन है वो चेंज हो गया था। मैंने ऊपर बुलिश लिखा था नीचे बेरिश लिखा था, बट जो कंडीशन है यहाँ पर, ओके वो ऊपर बेरिश की तो नीचे बुलिश की थी, जिसकी वजह से वो जो रिजल्ट है वो कई जगह पर आपको वो डाउट्स होंगे। यस, वो मेरे साइड से एरर था वो एक, तो वो मैंने रेक्टिफाई कर दिया है एंड मैंने वापस से वो सिस्टम में वो ऐड करवा दिया है। तो जब आप डाउनलोड्स करोगे आपको वहां से वो शो हो जाएगा। ओके, तो आज का ये कॉन्सेप्ट इतना ही है कि जब भी कभी आपको ये यू शेप फॉर्मेशन मिले, वो प्रीवियस डे हाई को टच करना चाहिए या उसको क्रॉस होकर ऊपर या नीचे कहीं जाना चाहिए। ओके, एंड अकॉर्डिंगली आप उस स्टॉक्स को फिर चूज कर सकते हो। कोशिश करिए कि जो भी आप ट्रेड लो वो 2 बजे के पहले लो, ताकि जो भी 2 बजे के बाद हो एटलीस्ट आपको होल्डिंग के लिए कुछ टाइम तो मिलना चाहिए आपके स्टॉक्स के लिए। सो पर्सनली मैं प्रीफर करता हूँ शुरुआत के जो 2 घंटे है वहां पे करो, वो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, वहां पे आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे, बिकॉज उसके बेस पे आपको जो रिवर्सल है इंट्राडे में वो एक अच्छे रेट में मिल सकता है। तो पार्ट 2 भी उसी का एक पार्ट है, ओके रिवर्सल का, जहां पे आप तीनों में से जो आपको बेस्ट लगे वो आप यूज कर सकते हो, या फिर तीनों भी यूज कर सकते हो। बिकॉज अगर आपके पास 3 टेक्निकल क्वेरी है, तो जो गैप्स वाला है वो हम वैसे भी मॉर्निंग में 9:20 को रन करें तो हमें स्टॉक्स मिल जाएगा, तो वो हम यूज कर सकते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए है कि भाई सेकंड और थर्ड वो रिकरिंग आते रहेगा। लाइक अगर आपने लाइव क्वेरी इफ यू पुट ऑन अ लाइव क्वेरी, तो वो कंटिन्यूस वो जब भी कभी फिल्टर होगा तो आपको शो हो जाएगा। अब उसमें से बेस्ट चूज कैसे करना है वो उसके लिए मैंने आपको कुछ कंडीशन दिया, वहां से आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। ओके, ओके सो उसकी जो कंडीशंस है वो हमने ऑलरेडी डाल दी है। जो व्हाइट कैंडल्स है वो बोरिंग कैंडल्स है, उसकी एक सेटिंग है, आप राइट क्लिक करोगे चार्ट सेटिंग्स आएगा एंड यहाँ पे शो बोरिंग कैंडल
कंडीशन है, इसको अगर आप टिक कर दोगे तो वो आ जाएगा। एंड फॉर द बॉडी साइज उसके अंदर मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया कि वो एक बोरिंग कैंडल होनी चाहिए। सो उसके लिए आपको प्राइस वर्चुअल वीडियोस वॉच करने पड़ेंगे। ओके, सो ये जो फॉर्मेशंस है ये आपको, आप एक बार इसको वॉच कीजिए, डेफिनेटली आपको इससे रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज मैं काफी टाइम से यूज करता हूँ। और इसमें हाँ, कई लोग बोलेंगे एक्यूरेसी एक्यूरेसी, ऐसे कि अगर आप जो कॉन्सेप्ट के साथ में जा रहे हो सो डेफिनेटली मोर देन 70 आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, लेकिन हाँ, लेकिन आपको ये समझना है कि स्टॉक की साइकोलॉजी क्या है। जैसे अभी मैंने कहा कि वो प्रीवियस डे हाई को टच कर रहा है एंड ऑल्सो क्रॉसिंग, जैसे हमने क्यूमिंस में देखा। ओके, ये हमने क्यूमिंस में देखा। अब ये क्यूमिंस में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे क्लियरली वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो मुझे स्टॉप लॉस छोटा है, लेकिन वहां से इफ आई सी द फॉल तो आई हैड अ पोटेंशियल कि भाई यहाँ तक तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ कि वो गिरेगा, एटलीस्ट 1% तो गिरेगा। सो इफ आई टेक कि अगर मैं यहाँ से अगर मैं एंट्री लेता हूँ 53 के आसपास, अगर मैं शॉर्टिंग का एंट्री करता हूँ तो वहां से जो फॉल है एटलीस्ट मैं 20 रुपीज एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो 1835 तक तो आना ही चाहिए। सो आई कैन एग्जिट माई 1835 एट हियर। ओके, सो वो चीज तो, और ऊपर से अगर आप देखोगे डेज का फर्स्ट कैंडल क्रॉस कर दिया, मतलब वहां से तो एक्सपेक्टेशन होता है कि बुलिश ट्रेंड रहेगा कंटिन्यू। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस रिवर्सल पैटर्न विथ प्रीवियस डे हाई लो, जहां पे आप अगर साथ में फिल्टरेशन करोगे तो आपके लिए और अच्छा, बिकॉज मैंने यहाँ पे नहीं डाला है वो कंडीशन, बिकॉज देर आर डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज इन दैट। समटाइम्स इट क्रॉसेस, समटाइम इट टेस्टेड। ओके, सो उसके से कुछ स्टॉक्स ना निकल जाए, इसके लिए मैंने वो प्रीवियस डे हाई वाला कंडीशन नहीं डाला है। बट ओवरऑल यस, यू कैन यूज दिस वन। तो अगर आपके इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है, या तीनों में से कोई भी पार्ट्स के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट्स है, तो आप वो यहाँ पर चैट बॉक्स में डालिए, मैं रीड आउट करता हूँ और जो भी मेरे साइड से होगा मैं आपको क्लियर करता हूँ। ओके, जैसे देखो अभी यहाँ पर हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर के साथ में कुछ ऐसी एडिशनल जो मेरे जो एक्सपीरियंसेस है उसको मैं शेयर करूँ, ताकि एट द एंड आपकी जो ट्रेडिंग्स है वहां पे आपको बेनिफिट मिले। जैसे पावर ग्रिड आया था, ये पावर ग्रिड जो स्टॉक है ये हमारे स्कैनर में आया था। ओके, यहाँ पे रिवर्सल पे, बट वी कैन नॉट टेक इट, भले उसने मूव किया है, we cannot take it because it was not fulfilling our criteria where your stock is touching previous day low। अगर वो टच कर रहा होता एंड देन रिवर्सल दे रहा होता तो वहां से अच्छा मूवमेंट मिलेगा। ओके, सो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या देखना है कि हमें आपको स्कैनर से वो लाइव रन करना है। अभी मैं करंटली ग्रुप से, मैं ग्रुप को क्लिक करके मैं वन बाय वन चेक कर रहा हूँ कौन से स्टॉक से, बिकॉज मैं स्कैनर में भी कर सकता हूँ, बट अगर ये मैं अगर एक्शन पे करता तो मेरे लिए और अच्छा होगा। बट एक्शन रिप्ले के लिए इट विल टेक टाइम, सो इट्स बेटर कि मैं डाउन एरो से जो हमारा जो फीचर है उसको मैं यूज कर सकता हूँ। एंड ये काफी हमें फास्ट मूवमेंट के लिए लाइक हम इसको चेक कर सकते हैं फास्ट मूवमेंट से। ओके, सो इस तरीके से आपको अगर कोई भी आपके डाउट्स है आप प्लीज अपने चैट बॉक्स में डालिए, वी आर शेयरिंग। ओके, सो सर आपको अगर नंबर देखना है, हमारा जो लैंडलाइन नंबर है विच इज 022-3501-8383 है। ओके, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको स्पेसिफिकली अगर मुझे कांटेक्ट करना है, नो डाउट आप वहां पे कॉल करके आप इन्फॉर्म कर दीजिए दैट यू वांटेड टू कांटेक्ट मी, डेफिनेटली आई विल कनेक्ट यू। ओके, यस, ये हो सकता है कि इफ आई गेट मल्टीपल ऑफ कॉल्स तो शायद डिले हो सकता है कि मे बी कि 1 डे 2 डे 3 डे पॉसिबल है, बट आई विल कनेक्ट यू। ओके, सो जो पर्सनली जो मैं और मेरी जो कुछ कलीग्स है जिनका मानना यह था कि नेवर आर्ग्यू विथ योर ट्रेडिंग सिस्टम, बिकॉज अगर आप कोई सिस्टम बना रहे हो, इफ यू कंटिन्यूसली वर्क ऑन इट तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा ही। तो उसके लिए भी मैं आपको कहूंगा कि यस, जो भी फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिले आप उसको फॉलो कीजिए। ओके, अगर आपको कुछ इनपुट्स है उसको भी आप ऐड कीजिए, नो डाउट, बट एट द एंड हमारा मोटिव एक ही है कि हमें जो है वो यही सोचना है कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं अपने बेस्ट के लिए कर रहा हूँ, एंड हमारा काम भी वही कि आपको बेस्ट नॉलेज आपको प्रोवाइड करें। ओके, तो ये जो सारी चीजें हैं आपको डाउनलोड्स में आपको मिल जाएगी, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जिट करके दिखा देता हूँ। ओके, मैंने एग्जिट किया और मैं आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ कि जो हमारा स्पाइडर है उसको मैंने ओपन किया। हाउ टू डाउनलोड दिस क्वेरी फाइल मैं आपको बता देता हूँ। ओके, आपको फाइल में जाना है, आप चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर वीडियो निकाल लीजिए। गो टू डाउनलोड फाइल्स। ओके, यहाँ पे मिस का ऑप्शन है, यहाँ पे जब आप जाओगे गेट फाइल लिस्ट,
ओके, यहाँ पे एक वेबिनार है। ओके, तो 1811 वेबिनार, इसको क्लिक करके अगर आप डाउनलोड कर लोगे, आपके सिस्टम में टेक्निकल क्वेरीज आ जाएंगे। ओके, आपको पीडीएफ भी आएगा, लेकिन पीडीएफ में खाली एक चीज आप रेक्टिफाई समझ लेना कि जो मैंने बेरिश फॉर्मेशन देखा है, ओके, वहां पे वो कैंडल का डिफरेंस है। ओके, कलर जो डिफरेंस है वो खाली एक एरर है जो मैंने अभी जस्ट वॉच किया है। ओके, ये जो फॉर्मेशन है एक्चुअली ये रेड होना चाहिए, ये ग्रीन होना चाहिए। ओके, और इट कैन बी रेड, चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रेड भी हो सकता है, बट दिस कैंडल शुड बी रेड बिकॉज ये इसके नीचे क्लोजिंग होगा ना। ओके, सो वो एक है, अदरवाइज कोई नहीं, बाकी चीजें करेक्ट है। आपके लैंडलाइन नंबर्स हमने यहाँ पे मेंशन रखे हैं हर एक पीपीटी के ऐड में, तो आप जब भी कभी आपको लगे आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो पीपीटी है आपके स्पाइडर फोल्डर के अंदर बाहर ही आपको मिल जाएंगे। ओके, जैसे अगर आप स्पाइडर फोल्डर में जाओगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। उसके लिए अगर तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन करोगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा। ओके, जैसे मैंने ओपन फाइल लोकेशन किया है, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक पीडीएफ आ जाएगा, जैसे दिख रहा है वेबिनार पीडीएफ, इसी तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो स्कैनर भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, और इसी के बेस पे आपके जो पीडीएफ है वो भी आपके सिस्टम में आ गया है। जस्ट आपको खाली वो डाउनलोड करना है एंड आप उसके रिजल्ट चेक कर सकते हो। ओके, आज आपके लिए आई थिंक वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज आपका ईओडी अगर डाउनलोड हो गया है, सो आपको वो शो नहीं होगा, बट येस फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स यू कैन यूज इट।